गाइस, दिस इज सोमदत्त और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके लिए लेकर के आया है पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस 2019 का पेपर। तो once you go through the paper, you will come to know what kind of questions they are asking, and you can prepare accordingly. So we'll begin with the first question. Our first question is from the Western political thought. For Plato, a just society is one in which there are four options. There is a classless egalitarian society. Each of the classes reflect the tripartite division of the soul. Lovers of wisdom are the guardians or police of the society. The virtue of the rulers is moderation. So, if you have uh, studied the Plato's concept of justice, you will see that this each of the classes reflect tripartite division of the soul, or justice is a bond that holds the society together. तो इनमें अलग अलग जो सोल है उसका अलग अलग प्रॉपर्टी है. तो दिस बी वुड बी द आंसर हियर. प्लेटो का आइडियल स्टेट है, उसका फिलोसॉफिक रूलर है, उसका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइज है, एंड उसका आइडिया ऑफ जस्टिस है. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now the second question is from public administration. Which of the following is not a feature of new public administration? There are, I guess, five features of new public administration. First is relevance, values, social equity, and this measurement would not be the answer. Here you can see the answer. Similarly, some of the new theories in public administration, for example, comparative public administration, development administration, the new public management, and some of the principles and the evolution of public administration. Only these things are asked in political science paper from public administration. So you can focus only the relevant stuff. And then there is this Herbert Simon, his bounded rationality, that is decision making theory and all, and study of public policy also. Now third question is, what was Aristotle's attitude towards slavery? Option A, he disapproved strongly. Option B, he disapproved reluctantly. Option C, he considered it to be the against nature. Option D, he considered it to be natural. As you can easily see, Aristotle considered slavery to be natural and necessary too. No? So he justified slavery on the grounds that these philosophic rulers, or no, not philosophic rulers, the person who participate in the politics, they need some leisure time, and the slaves would be there to assist them, and that kind of attitude. Question number 4. The universal breadwinner model for society has been criticized for undermining the importance of option A, equality, option B, independence, option C, care work, option D, individualism. Here again you can see ethics of care, and you might have studied all these concepts in the feminist theory. Universal breadwinner model in the sense that man is considered, no, man in the family is considered the breadwinner. So here you can see most of the care work is ignored. तो इसलिए इसको criticize किया जाता है. Similarly, you can focus on some of the feminist theories. Contemporary feminist theories, Martha Nussbaum, and all these. Question number 5. Good governance and participating civil society for development were stressed in World Bank report of 1992. वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी शुरू किया सब सारन अफ्रीका में कि व्हाई दीज सोसाइटीज आर नॉट एट पार विद द वेस्टर्न सोसाइटीज, और व्हाई दे आर नॉट डेवलपिंग. तो उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट इज नेसेसरी. गुड गवर्नेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट यू शुड लुक इनटू. और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, गुड गवर्नेंस, all these are contemporary topics, hot topics. Question number 6. Which of the following need a votes of two-third majority of total membership of both houses of parliament? Here if you see here you see two-third majority of total membership.
So this kind of majority is required only in one instance, and that is impeachment of president. For all other options, you need two-third majority of members present. Two-third majority of sorry, I'm getting confused a little bit. Two-third majority of total membership. Two-third majority of all the members present plus more than half of the total membership. So that is another kind of majority. इस majority में केवल impeachment of president total membership, there are total members whatever, for example 545 members are there, तो उसका two-third majority. Question number 7. In Orientalism, Edward Said applied Wu's technique of discourse analysis to the production of knowledge about the Middle East. Discourse analysis is a concept enunciated by Foucault, so you easily can find it out. और इसी तरह से पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स में जूलियस नैरे है, फ्रेंच फैनन है, और अदर फिर सबऑल्टर्न थियरी है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी है. तो इन पर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन फोकस ऑन दीज पार्ट्स. फिर हाबरमास का पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है. थॉमस कुहन का बुक है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर पोपर का ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफिकेशन and social engineering. You can focus on these kinds of topics. So I guess, yeah, Foucault is the answer. Now question number 8. Which political theorist uses the example of a basketball player Wilt Chamberlain to argue against patent principles of distributive justice? Nozick uses the example. नोजिक का पता है आपको कि his theory is called entitlement theory of justice, and he criticized the end state principles or patent principles of justice, who identifies the end ना beforehand. I mean, आप पहले से ही एंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इन वॉट वे यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यूज और डिस्ट्रीब्यूट द आइटम्स इन द सोसाइटी. तो ये एंड स्टेट प्रिंसिपल्स और पैटर्न प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि जो रोल्स के हैं या फिर उस पहले से जो आर्ग्यू हो रहे हैं कुछ प्रिंसिपल्स. इसी तरह से ब्रायन बेरी का शायद ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है. रोल्स अपनी थियरी को प्योर प्रोसीजरल थियरी ऑफ जस्टिस, मतलब दीज काइंड ऑफ वर्ड्स है ना, केची वर्ड्स, यू नीड टू फोकस ऑन दीज. और फिर हाना आरेंट का जो उसने एक पार को किस तरह से डिफाइन किया है, ग्रुप का क्या रोल है. इसी तरह से अथॉरिटी हाना आरेंट का जो है कि टोटलिटेरियनिज्म, तो ये से सब भी आपको पढ़ना चाहिए. Question number 9. In the Republican theory of freedom, freedom is defined as the absence of physical barriers, inner constraints, domination, interference. इसमें आप देखोगे कि यूजुअली हम लिबर्टी में या फिर फ्रीडम में पढ़ते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, जो इजाया बर्लिन ने कॉन्सेप्ट दिया. तो उसमें नेगेटिव लिबर्टी में तो अब्सेंस ऑफ फिजिकल बैरियर्स, और पॉजिटिव लिबर्टी में इज अकॉर्डिंग टू, आई मीन, इजाया बर्लिन, absence of inner constraints, मतलब there is a higher self and there is a lower self, and your lower self should be in control of your higher self. So that is his idea of positive liberty. फिर ये रिपब्लिकन थियरी ऑफ फ्रीडम है, ये थोड़ा सा और इसको क्रिएटिवली डिफाइन करते हैं फ्रीडम को, कि फ्रीडम इज absence of domination. Domination can be anywhere, in the private sphere, in the public sphere. For example, your teacher can dominate you, your younger brother, your elder brother can dominate you, your parents can dominate you. इस तरह से तो domination in every sphere. So that is the Republican theory of freedom. Republicans, आपको पता है, they focus on the liberty, and the Republican, the word Republican means two things. I mean, first is that the head should be elected head and not a hereditary or इस तरह से, and then second is the concept of liberty and freedom is very prominent in Republican theory. तो मैकाइवली, क्विंटन स्किनर, फिर फिलिप पेटिट, ये सब लोग रिपब्लिकन थियरी ऑफ फ्रीडम को आर्ग्यू करते हैं. Going further, question number 10. The theory of prismatic society in public administration is based on study of public services in developing and developing countries. Option A. Option B. Institutional comparison of public administration in developed countries.
Option C, structural functional analysis of public administration in developing countries. And option D, historical studies of public administration in different countries. Uh, this guy Fred Riggs, है ना, F.W. Riggs. Fred Riggs brought this concept to study the third world countries, the developing countries, using the structural functional analysis. इससे आप familiar होंगे प्रिज्मेटिक सोसाइटी से, कि ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, एक मॉडर्न सोसाइटी होती है, एंड समवेयर देयर इज दिस प्रिज्मेटिक सोसाइटी. इसी तरह से इसका साला मॉडल है, और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और भी बहुत सारी चीजों की बात करता है एफ.डब्ल्यू. रिग्स. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर एग्जांपल फॉर्मलिज्म है, और पर्सनल रिलेशंस ज्यादा, ना, तो इस तरह से जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज आई सेड, these are some of the theories, first you need, in at least in public administration, first you go to the evolution of public administration, then the theories or approaches of public administration, for example this classical theory, this scientific model of Taylor, and then new public administration, development administration. बस अब थोड़ा सा इनका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह है, एंड हु आर्ग्यूड दिस थियरी, दिस वुड सफाइस आई गेस. और फिर प्रिंसिपल्स है, जैसे हायरार्की है, डेलीगेशन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इस तरह से ये सारे जितने भी इस प्रिंसिपल्स है. क्वेश्चन नंबर 11, the mechanistic theory of organization is also referred to as the classical theory. This is the answer, classical theory. Again, it's a question from public administration. You can see, you know, scientific management theory, Taylor, और इसी तरह से ह्यूमन एल्टन मेयो ने जो दिया था. इस तरह से जो मेजर थिंग्स है, आपको लक्ष्मीकांत के फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स में सारा स्टफ मिल जाएगा. दैट विल बी सफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर 12, freedom is the positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing or enjoying. Who said this? T.S. Green said this. अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी. तो पॉजिटिव लिबर्टी में इजाया बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को अलग तरीके से डिफाइन करता है, और जो ग्रीन है और ये जो मॉडर्न लिबरल्स है, उसके बाद में आपको पता है कि वेलफेयर स्टेट को जितने भी लोग आर्ग्यू करते हैं, वो पॉजिटिव लिबर्टी को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, स्पेशली इन मटेरियल स्पेयर. और जो 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 इजाया बर्लिन है, वो केवल मोरल स्पेयर में, कि हायर मोरल सेल्फ है, लोअर मोरल सेल्फ है, केवल वहां तक डिफाइन करता है. इसी तरह से लॉर्ड एक्टन वगैरह बोलते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर एंटीथेटिकल. फिर जेएस मिल है, जेएस मिल प्राइमरीली आर्ग्यूड फॉर नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी. फॉर एग्जांपल नेगेटिव इन द सेंस की एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स. और बर्क तो आपको पता है ना, बर्क एंड एडमंड बर्क फॉर एग्जांपल इज अ कंजर्वेटिव थिंकर. तो they think security is more important than liberty. Question number 13, no association can last if its members do not practice justice among themselves. This idea is central to whose philosophy? Here again you can easily identify it. Plato would be the answer. इसका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट ही यही है. और फिर रोल्स भी बोलता है कि जस्टिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, इस तरह से कुछ. So here you can identify the correct answer would be Plato. No association can last if its members do not practice justice among themselves. मतलब there are some assigned tasks to the 3 classes in Plato's schema of justice. तो उसमें अलग अलग, जैसे producers है तो they produce, then there are soldiers, then there are philosophic rulers. इनके अलग अलग टास्क है, and they have to perform the tasks allotted to them. तो यही justice है, मतलब according to Plato. Next question. Question number 14. Who among the following predicted that the next world war is likely to be the conflict between the West and the rest? ये हंटिंगटन, एसपी हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. ये बेसिकली फुकुयामा ने जब एंड ऑफ हिस्ट्री करके इसका ऐसे आया कि
Now the history has ended, and there is only one form of government, one form of this liberal democracy will reign supreme. तो उसमें फिर एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट्स वगैरह आपको पता है ना, इससे पहले चल रहे थे. End of ideology was argued by Daniel Bell, and this Huntington Huntington argued in reaction to Fukuyama's essay that now there would not be that kind of ideological clash, but there will be civilization clashes between the वेस्ट एंड द रेस्ट. और इसी का ये थीसिस था हंटिंगटन का. हंटिंगटन के कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इसका डेवलपमेंट इन डीके का जो कॉन्सेप्ट है, देन देयर इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और मोबिलाइजेशन में ये जो डिस्टिंग्विश करता है इन दोनों में. देन yeah, I mean all these kind of things you need to go through. Then there is this that order is more important than liberty or freedom. हाँ, तो हंटिंगटन का बुक है, फुकुयामा का बुक है, एडवर्ड सईड, नोम चॉम्स्की का मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, किस तरह से मीडिया जो है यूएसए में अपनी हेजेमनी क्रिएट करता है, कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा है. मतलब से सेम थिंग वी कैन सी इन इंडिया टू एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. तो हियर आंसर वुड बी हंटिंगटन. तो इस तरह की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी है उसमें जितने भी थिंकर्स हैं इन पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. Coming to the next question, which among the following fundamental rights in the Constitution of India is available to both citizens and aliens? तो इसमें आप देख सकते हो कि there are some fundamental rights which are available to Indians and there are some others which are available to aliens. So here you can see only equality before law. This you can cover from the Lakshmikant stuff. Question number 16. What sort of government did Hobbes support in Leviathan? Constitutional monarchy, option B direct democracy, option C absolute monarchy, and option D representative democracy. तो इसमें आप देख सकते हो कि absolute monarchy is supported by Hobbes in Leviathan, and then direct democracy is argued by Rousseau, then constitutional monarchy is argued by John Locke, and representative democracy by Bentham and J.S. Mill. So here answer would be C, absolute monarchy. Absolute monarchy is supported by Hobbes in Leviathan. इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर्स थे, तो ये हॉब्स लॉक रूसो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें भी फिर इनका जो है सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी ना हॉब्स और लॉक का कि विच कम्स फर्स्ट, वेदर स्टेट ऑफ नेचर में किस टाइप की कंडीशन थी. हॉब्स के अकॉर्डिंग है ना एकदम से कन्फ्लिक्चुअल ह्यूमन नेचर था, लॉक के अकॉर्डिंग अलग था, और रूसो के अकॉर्डिंग अलग था. फिर रूसो का जनरल विल, हॉब्स नेचुरल राइट्स में से किस राइट्स को कंटेन करने की बात करता है, लॉक के नेचुरल राइट्स में कितने टाइप के राइट्स है, और इसका कंसेंट, आइडिया ऑफ टेसिट कंसेंट है, और इसी तरह से टोलरेशन पर लॉक क्या क्या बोलता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. According to Gramsci, concept of hegemony means this moral and intellectual leadership. Gramsci argued that why there were no revolution in developed countries even after Marx argued that there would be revolution at least in advanced developed countries. तो ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओनली कोर्सन वाज देयर, कि वर्कर्स है उनमें केवल कोर्सिव अपरेटस का यूज किया जाता है. पर ग्रामसी बोलता है कि नहीं, कोर्सन के अलावा कंसेंट भी है उधर, और कुछ सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस है जो कि कंसेंट और ये कंसेंट बनाने का काम करते हैं. तो इस वजह से वहाँ रेवोल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि दिस आइडिया ऑफ कंसेंट इज ऑल्सो देयर, नॉट ओनली कोर्सन. तो ये लोग मार्क्स के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से सुपर स्ट्रक्चर की ओर बढ़ने लगते हैं, और रोल ऑफ आइडियाज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामसी, अल्थुजर and other Frankfurt School thinkers. So yeah, here we can see this. According to Gramsci, concept of hegemony means moral and intellectual leadership. Question number 18. T.S. Marshall's definition of citizenship as full and equal membership in the political community refers to citizenship as a status
केवल सिटीजनशिप एज अ स्टेटस है ना, ये लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई सिटीजनशिप एज अ स्टेटस। और ये मार्शल का सिटीजनशिप का डेफिनेशन भी है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी, फुल एंड इक्वल इन द सेंस दैट liberalism is difference blind, it does not recognize the role of minorities, है ना, the and the marginalized sections, the discrimination they face. तो इसीलिए ये सिटीजनशिप, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप इज आर्ग्यूड बाय आरिस मारियन यंग एंड अदर स्कॉलर्स। तो ये इसका क्रिटिक है एक तरह से लिबरल सिटीजनशिप का। और सिटीजनशिप इज एन आइडेंटिटी, जितने भी मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर हैं दे आर्ग्यू अबाउट दिस identity, role of identity becomes very important. Okay, so number 19, a key figure in the development of pluralist theory is C. Wright Mills, Robert Dahl, Roald Dahl, James Burnham. uh, Robert Dahl would be the answer. Pluralist theory in the sense, pluralist theory or group theory एक ही है कि state is not the only institution in the society, there are another institutions too, and they are as important as the state. So role of the state is just to act as a referee, act as a neutral observer, not neutral observer, it has to act as a referee, मतलब it has to collaborate between the different institutions, that is the only role of the state. और फिर ये प्रेशर ग्रुप्स वगैरह का रोल इसी तरह से प्लूरलिज्म में कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं। एक तो रॉबर्ट डाली हो गया, उसके बाद में देयर वर सम अर्ली ग्रुप थियरी एनालिस्ट्स, आई कांट रिकॉल देयर नेम्स राइट नाउ, पर जो मेरियम वगैरह से पहले, चार्ल्स मेरियम वगैरह से पहले, जिनसे मतलब जैसे ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राम वालास ने बुक लिखा था, तो उस टाइम पर ही कुछ 2 या 3 स्कॉलर्स थे जो ग्रुप थियरी पर लिखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय दैट पर्सन whose name I'm not able to recall. When groups are stated, everything is stated. और इसी तरह से उनकी बुक्स एंड ऑथर्स है, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर एलिटिस्ट थियरी, सी राइट मिल्स वाज एन एलिटिस्ट थिंकर। आपको पता है पारेटो, मॉस्का, माइकल, इनका जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स है, फॉक्स और लायन में जो ये डिस्टिंक्शन है, इस तरह से। और सी राइट मिल्स का और प्रेसिडेंट आइजनहावर ने फॉर एग्जांपल सबसे पहले बोला मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, फिर सी राइट मिल्स उसमें मिलिट्री कैपिटलिस्ट वगैरह हो गए, और पॉलिटिशियंस को भी ऐड कर देता है कि किस तरह से ये लोग अपनी हेजेमनी क्रिएट करते हैं, और यही लोग जो एलिट स्ट्राटा है उसमें काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, the argument that international relations are characterized by anarchy, which makes it necessary for the states to maintain their independence and safeguard national interest, is associated with liberalism, constructivism, Marxism, realism. Realism would be the answer, neo-realism. ये फॉर एग्जांपल रियलिज्म जो है वो विच आर्ग्यूज दैट ह्यूमन इगोइज्म इज रिफ्लेक्टेड इन स्टेट इगोइज्म। और फिर न्यू रियलिज्म बोलता है कि नहीं, ह्यूमन इगोइज्म डज नॉट प्ले दैट काइंड ऑफ अ रोल। इंटरनेशनल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनार्की, देयर इज नो सुप्रीम पावर टू एजुडिकेट और टू है ना रिजोल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट एक्टर्स। तो ये बोलता है इंटरनेशनल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनार्की, तो स्टेट के पास सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प के लिए नेशनल इंटरेस्ट वगैरह, पावर मैक्सिमाइजेशन वगैरह, यही चीजें बच जाती हैं। इस चारों की चारों थियरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईआर में। इसी तरह से फेमिनिस्ट थियरी ऑफ आईआर है, और पोस्ट कॉलोनियल थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर कुछ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, इसमें बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ब्रेटन वुड्स, यूएनओ, इन सब चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हो। Question number 21, Indian political thought से क्वेश्चन है ये। My Hindu instinct tells me that all religions are more or less true. All proceed from the same God, but all are imperfect because they have come to us through imperfect human instrumentality. The real Shuddhi moment should consist in each one trying to arrive at perfection in his or her own faith.
So the Shuddhi movement was started by Dayanand Saraswati. We all know. Uh, uh, Going back to Vedas, ना ये इसका शायद वो था, मेन आर्ग्यूमेंट था। और जो मीडिएटर, जो ब्राह्मण्स वगैरह, जो मीडिएशन का काम है, इस काम को बंद करना वगैरह वगैरह। तो ये सब। Question number 22. Which among the following is not relevant for the federal polity in India? Article 370, fifth schedule, sixth schedule. We all see these are related to the federal polity, the federal system. Article 243 ये शायद I'm not sure, पर election adult franchise उससे शायद related होगा. Which of the following would be associated with neoliberal politics? Neoliberal politics, it started with Ronald Reagan in America and Margaret Thatcher in UK. इनको रिगोनॉमिक्स और थेचरिज्म भी बोलते हैं जिनको, और इनके कुछ एडवाइजर्स थे, फॉर एग्जांपल मिल्टन फ्राइडमैन, हाइक, रॉबर्ट नोजिक वगैरह। ये सारे के सारे न्यू लिबरल स्कॉलर्स हैं। ये जो क्लासिकल लिबरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्लासिकल लिबरल्स के जो आर्गुमेंट्स थे, उनको वापस से, है ना, बीच में आपको पता है ये मॉडर्न लिबरल्स आ जाते हैं, वेलफेयर स्टेट आ जाता है, तो ये फिर से कि स्टेट के रोल को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट कांट इंटरफेयर, देयर आर फ्री मार्केट्स, देयर आर रेशनल इंडिविजुअल्स हु कैन मेक देयर ओन चॉइसेस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू यूज, टैक्सेशन इज फोर्स्ड लेबर। इस तरह के जितने भी आर्गुमेंट्स है, ये सारे के सारे न्यू लिबरल पॉलिटिक्स के हैं। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है। जो लास्ट में है स्टेट, whatever it is a French word I guess, तो ये एकदम से न्यू लिबरल पॉलिटिक्स का एकदम उल्टा है। इसका मतलब है कि स्टेट कैन इंटरफेयर। तो only 1, 2 and 3 would be the correct answer. Very easy question. Question number 24. Rights are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best. Who said this? ये लास्की का स्टेटमेंट है। टीएच ग्रीन का भी इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट है ना, राइट्स डिमांड स्टेट, राइट डिमांड्स लिबर्टी, इस तरह से कुछ करके जो बारकर ने उसके थ्रू आर्गुमेंट किया है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ऊपर टीएच ग्रीन का अपन ने ऊपर फ्रीडम के बारे में पढ़ा ही था। Next question. What does the phrase rule of law mean? Everyone is equal in the eyes of law. This would be the answer. Question number 26. Which egalitarian theorist view would you associate with the idea of auction, insurance schemes and free market? Dworkin. ये इगलिटेरियन थियरी में जितने भी जस्टिस पर डिफरेंट व्यूज है, फॉर एग्जांपल नोजिक का एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, रोल्स का प्योर प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इसमें भी फिर अलग अलग इसके वेल ऑफ इग्नोरेंस है, ओरिजिनल पोजीशन है, कुछ टर्म्स है ना, उनका क्या मतलब है। ओरिजिनल पोजीशन में जो रेशनल निगोशिएटर्स होते हैं, what they know about their condition and what they do not know, है ना। ब्रायन बेरी का ग्लोबल जस्टिस से रिलेटेड कुछ करके है शायद। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है जस्टिस में। और इसी तरह से वोल्जर का स्पेयर्स ऑफ जस्टिस है। तो ये सारे के सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हियर आंसर वुड बी रोनाल्ड वर्किंग। Next question 27. In comparative politics, the concept of civic culture is used for the study of popular culture, behavior of the members of parliament, attitudes in parliament in democracy, functioning of bureaucracy. Here the answer would be C. These guys, Ahmed and Verba, they study uh, orientations and attitudes of citizens in 5 countries: UK, USA, UK, USA, Mexico, and UK, USA, Mexico, whatever. There were 5 countries, तो उनमें ये different orientations होते हैं citizens के इनमें, और उसी के बेसिस पर ये orientations को देख करके कि फिर 3 cultures को identify करते हैं। participant culture है, civic culture जो तीनों का mix culture होता है, फिर वो best is which is best, है ना।
ये थ्री आइडियल फॉर्म्स होते हैं और फिर बोलते हैं सब कंट्रीज में मिक्स कल्चर पाया जाता है, दैट इज सिविक कल्चर। उसका प्राइम एग्जांपल यूके यूएसए है। अम, तो ये फाइव कंट्रीज है वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर वो थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशंस ना, एटीट्यूड्स, कि एक आम जो सिटीजन है उसका गवर्नमेंट को लेकर के ना इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन है, किस तरह के ओरिएंटेशंस है, किस तरह से वो जज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ये आर्ग्यू करते हैं कि किस तरह से मतलब डेमोक्रेसी सस्टेन होती है, मतलब कल्चर और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है, बेसिकली ऑल इन ऑल। ऐसी इनका स्लीपिंग डॉग्स थियरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर भी है कि इनका मेजर आर्गुमेंट यही है कि लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सिग्निफाइज दैट पीपल आर मोर और लेस सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, इसलिए इसको स्लीपिंग डॉग्स थियरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर भी। फिर एसी फाइनर का भी थ्री काइंड्स ऑफ डेफिनेशन है। मैन ऑन हॉर्स बैक जो मिलिट्री कल्चर्स की बात करता है ना, लो, जो whatever three kinds of culture was that। डेनियल एल्जर का भी है मटेरियलिस्टिक कल्चर, वे भी एक तरह से एक क्लासिफिकेशन है। तो दीज ऑल थ्री क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे के सारे जो बिहेवियरलिज्म, हाँ, ये सारे के सारे जितने भी आए। Question number 28. The redrawing of the boundaries of electoral constituencies to maximize the efficiency of party support is referred to as gerrymandering. Gerrymandering is a process uh, associated with the United States political system. तो उसमें मतलब पार्टीज, अलग अलग पार्टीज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करती है कि वोट मैक्सिमाइज हो सके। इसी तरह से कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई सेनेटर है, वो सेनेट के काम में बाधा डालने के लिए बोलता ही रहता है, तो उसको कोई चुप नहीं करवा सकता। दैट दैट इज अगेन अ टर्म। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल सिस्टम्स है, यूएसए, यूके, चाइना, स्विट्जरलैंड, इनका थोड़ा थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम आईआर। द एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थियरी इज माइकल डॉयल। माइकल डोयल से पहले आपको पता है ना दैट दिस डेमोक्रेटिक पीस थीसिस, या कुछ भी कह दो कि डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट, देयर इज नो फाइट बिटवीन द डेमोक्रेसीज। तो ये परपेचुअल पीस की बात करता है आपका इमैनुअल कांट जो है। उसके बाद माइकल डोयल है, फिर फ्रांसिस फुकुयामा है, फिर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी भी इन बिटवीन, जो वो रिजीम चेंज की बात करते हैं, रिगन वगैरह। तो ये एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थियरीज माइकल डोवेल। इसी तरह से अनार्किकल सोसाइटी हेडलेबुल का कॉन्सेप्ट है। फिर ये जो होते हैं ना मतलब मेजर कॉन्सेप्ट्स, तो उन पर कम से कम अब अभी इसमें आपको और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। यू सी ओनली द नेम एसोसिएटेड विद दिस थियरी इज आस्क्ड, कोई ज्यादा डीप में जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से वुड्रो विल्सन का हु गेव द 14 पॉइंट्स है ना। वुड्रो विल्सन वाज दिस वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंकर्स इन द इंटरवॉर पीरियड। और लीग ऑफ नेशंस वगैरह, 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 30. Hamza Alvi's analysis of the nature of state in post-colonial societies is based on which of the following countries? आंसर वुड बी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अलवी ने, ये पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, इसने पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को स्टडी किया और बताया किस तरह से स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज इज एन ओवर डेवलप्ड स्टेट। वहां पर ऑलरेडी मतलब जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था, कॉलोनियल अपरेटस था, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। और किस तरह से मतलब जो थ्री क्लासेस की ये बात करता है, वो एक तरह से रिलेटिव ऑटोनॉमी मेंटेन करता है स्टेट इन क्लासेस को। ये क्लासेस अपने डायनामिक्स प्ले करती रहती है। तो इसी की बुक का ही नाम है, मतलब एक्सटेंडेड जो जो टॉपिक है, जो भी बुक का नाम है उसके आगे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का स्टडी। प्रणब वर्धन भी फिर इसी पर बिल्ड ऑन करता है। और ना इसी तरह से इंडियन स्टेट की जो डिबेट है पूरी की पूरी, यू कैन गो थ्रू इट इन दिस ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, फर्स्ट चैप्टर जो है, इट ब्यूटीफुली समराइजेस द एंटायर डिबेट ऑन इंडियन स्टेट।
Question number 31. Who is the author of Gulamgiri? Jyotirao Phule. Question number 32. Who was the chairman of the advisory committee of the Constituent Assembly of India? Here I think Patel would be the answer. इसी तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी है, स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन कमेटी है, स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, फिर राजेंद्र प्रसाद ने भी कुछ कमेटीज को चेयर किया था, एक ही कमेटी थी आई गेस. Question number 33. Which group accepted gradualness is the midwife of social change? Fabians. Yeah, Fabians would be the answer. Fabian socialism है. Socialism के different strands है. Fabian socialism, guild socialism जो GDS कोल का था, फिर जॉर्ज सोरेल का सिंडिकलिज्म. इनमें क्या क्या डिफरेंस है ना. एक और दो लाइन बस आपको लिखनी है कि इनके मेजर आर्गुमेंट्स क्या है और कौन कौन इनके प्रोपोनेंट्स है. तो ये सब anarchist we all know, है ना. Question number 34. Which among the following is a critique of the theory of social capital in contemporary times? John Harris, Robert Putnam, James Coleman, Bourdieu. ये तीनों के तीनों तो सोशल कैपिटल के लिए आर्ग्यू करते हैं, मतलब है ना. सोशल कैपिटल को जो जो कॉन्सेप्ट है उसको, इसके बारे में ये तीनों ने लिखा है. रॉबर्ट पुटनम का मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क इन यूएसए और बॉलिंग अलोन, इस तरह की कुछ बुक्स है. तो बोर्डियो, जेम्स कोलेमन इससे पहले सोशल कैपिटल की बात करने लगते हैं ना. पुटनम का पूरा स्टडी है कि साउथ इटली और नॉर्थ इटली में कैसे फर्क है, मतलब व्हाई नॉर्थ इटली इज प्रॉस्पर एंड देयर इज मोर ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटी, बिटवीन द पीपल, एंड व्हाई साउथ इटली इज पुअर एंड लैकिंग इन ट्रस्ट और सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और ये सारी चीजें. तो जॉन हैरिस क्रिटिक करता है इसको, सोशल कैपिटल कॉन्टेम्परेरी टाइम्स. द आंसर वुड बी 1. Question number 35. In Max Weber's classification, modern governments are increasingly dependent on one of the following. Weber का classification है ना, he classified authority or regime types into three. This traditional authority, charismatic authority and legal rational authority. तो इसमें आंसर 4 दे रखा है. The personal charisma of rulers. You can read the question again. In Max Weber's classification, modern governments are increasingly dependent on one of the following. The personal charisma of rulers. तो शायद वेबर तो लीगल रेशनल अथॉरिटी की बात करता था कि अभी के टाइम में यही चल रहा है, पर what we are witnessing in the contemporary times in these days is the personal charisma of rulers. मोदी जी है, पुतिन है, कोई भी है. So number 35, answer would be 4. Now question number 36. The national traditions as we understand them are more often invented than historically evolved. Whom do you think is the proponent of this view? Here answer would be Eric Hobsbawm. उसका इन्वेंटेड ट्रेडिशंस करके जो कॉन्सेप्ट था, ये मार्क्सिस्ट, थोड़ा मार्क्सिस्ट की तरफ ओरिएंटेशन है इनका. इसी तरह से इमेजिन्ड कम्युनिटीज जो है वो है बेनेडिक्ट एंडरसन का करके बुक है. फिर एली कैडोरी का जो ईस्ट और वेस्टर्न है ना, क्या डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न नेशनलिज्म में, ये सारी बातें. अर्नेस्ट गेलनर का पॉलिटिकल नेशनलिज्म. इस तरह से एक कोई स्कॉलर है वो बैनल नेशनलिज्म की बात करता है, वाई कि नेशनलिज्म इज एन एवरीडे फेनोमेना. तो ये सारे के सारे नेशनलिज्म पर, ग्लोबलाइजेशन पर ना, जितने भी थियरीज कॉन्सेप्ट्स है, सिविल, ये आपका गवर्नेंस. क्वेश्चन नंबर 37. लीगल सोवरेनिटी इन इंडिया लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन. यही यूके के सेंस में होता तो पार्लियामेंट हो जाता. Question number 38. Who among the following has the view that the functions of the state appear overwhelmingly military and overwhelmingly geopolitical rather than economic and domestic? ये माइकल मैन का कॉन्सेप्ट है, माइकल मैन का थियरी है, ये उसका सेंट्रल थीम है. ये स्टेट पर, मतलब एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की जो बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टेट की जो बात करते हैं. चार्ल्स टिली भी बोलता है
वॉर मेकिंग थियरी ऑफ स्टेट की स्टेट मेक्स वॉर एंड वॉर मेक्स स्टेट. Question number 39. The idea of derivative discourse in Indian politics is related with Partha Chatterjee, Bhikhu Parekh, Amartya Sen, Ramachandra Guha. तो your answer would be पार्था चटर्जी. इसका बुक भी है डेरिवेटिव डिस्कोर्स के नाम से, जिसमें कि ये थ्री नेशनलिस्ट्स को स्टडी करते हैं. गांधी गांधी नेहरू एंड बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय या चटर्जी. तो किस तरह से मतलब ये बताते हैं कि अभी भी मतलब जो नेशनलिज्म का जितना भी डिस्कशन हुआ है, किस तरह से कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी मतलब इन पर हावी है. कॉलोनियल जो पूरा का पूरा नेशनलिज्म है, उसी उसी अ, उसी पर्सपेक्टिव से उसको आर्ग्यू किया जा रहा है. और किस तरह से नेशनलिज्म जो है वो एक मतलब इट्स नॉट अ गुड फिनोमेना. आई मीन दैट्स व्हाट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट. और इस पार्थ चटर्जी के और भी जितने भी बुक्स हैं, तो एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड दिस we will discuss this concept at length in our classes. इसी तरह से सुदीप्ता कविराज का जो पैसिव रेवोल्यूशन की बात करता है, प्रणब वर्धन जो है थ्री क्लासेस और रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात करता है. और फिर कुछ और थिंकर्स भी है जो कंसेंसस की बात करता है, रजनी कोठारी. इसी तरह से पार्था चटर्जी का यू सी दिस ही क्रिटिक दिस गाय बेनेडिक्ट एंडरसन की. बेनेडिक्ट एंडरसन बोलता है ये थ्री फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म है एंड थर्ड वर्ल्ड कैन अडॉप्ट एनी ऑफ देम. एंड चटर्जी आर्ग्यूज कि अगर इनमें से अडॉप्ट करना है तो व्हाट इज देयर टू लेफ्ट टू इमेजिन, व्हाट वी विल इमेजिन. आई मीन यू सेड nationalism is about imagine communities, people imagine their fellow members, their fellow communities. प्रिंट कैपिटलिज्म वगैरह आता है उसके माध्यम से. तो हम फिर इमेजिन क्या करेंगे अगर अडोप्ट ही करना है तो. क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following is not a reason that Mill offers in defense of the liberty of speech and expression? Difference between self-regarding and other-regarding action. Truth is many-sided. Truth emerges from debate between conflicting positions. And option D, even a small minority of one can turn out to be correct. तो ये तीनों के तीनों आपको पता है ना. These are the three reasons given by J.S. Mill in defense of his speech and expression argument. Now difference between self-regarding and other-regarding action, ये तो बस स्टेट और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को मैनेज करने के लिए है कि there are self-regarding actions in which individual is sovereign, state can't interfere, and there is other regarding actions मतलब where you can cause harm to other person. There is this possibility of state interference or interference of other authorities. लिबर्टी पे आपने देखा है ना, दो या तीन क्वेश्चंस आ गए. Question number 41. Elections to the Rajya Sabha in India follow the principle of proportional representation. Which among the following system is followed? ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ये इसी तरह से आप इनको भी सब पढ़ सकते हो है ना, कि ये कैसे डिफरेंस है. मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. पार्टी लिस्ट सिस्टम है. फिर जितने भी मतलब मेजोरिटेरियन सिस्टम है और जितने भी पीआर सिस्टम है, ये कैसे अलग होते हैं, क्या क्या इनके पिटफॉल्स है, क्या क्या इनके बेनिफिट्स है. इसी तरह से डुअर्जर का जो थीसिस है ना कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑलवेज लीड्स टू बाई पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम. पार्टी सिस्टम में और भी कुछ थियरीज है. तो हियर द आंसर वुड बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 42. What is the main function of the state according to pluralism? अभी अपन ग्रुप थियरी, प्लूरलिज्म, रॉबर्ट डाल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट इज देयर टू coordinate and harmonize activities of all groups and associations. It is also one among the associations. It just act as a referee. तो ये प्रमोट ऑल राउंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स. ये तो वेलफेयर स्टेट का काम है, जिसको मार्गरेट थैचर वगैरह नैनी स्टेट भी बोलते हैं. रेगुलेट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर. इसको कॉर्पोरेटिविस्ट स्टेट हो गया. ये प्रोड्यूस एसेंशियल गुड्स. अगेन है ना, मतलब केवल केवल यही काम बच जाता है प्लूरलिस्ट स्टेट का. बाकी आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट फॉर्म्स है, वो अलग अलग प्रिंसिपल से आर्ग्यू करते हैं. सॉरी.
Question number 43. Which philosopher is linked to the idea of early enlightenment preceding the 18th century? कांट, हेगल, रूसो, ये स्पिनोजा, जो भी नाम है, बेनेडिक्ट, ये इनसे पहले आ जाता है, तो हियर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Question number 44. Which of the following articles were not part of the original Constitution of India? You can easily see Article 300A. बाकी सारे के सारे ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे, ये शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा. Question number 45. Which among the following book is not authored by Partha Chatterjee? As we discussed above, पार्था चटर्जी, सुदीप्ता कविराज, और ये जो इंडियन स्कॉलर्स हैं और जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंडिया को स्टडी किया, मायरन बीनर, पोल प्रास, ग्रेनविल ऑस्टिन, ये सारे के सारे स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और फिर सबॉल्टन थिंकर्स में गुहा, चटर्जी, कविराज, और भी जितने भी, गायत्री, स्पीवॉक, जितने भी, मतलब. तो इसमें द आइडिया ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय सुनील खिलनानी. तो ये तीनों की तीनों बुक्स आर रिटन बाय पार्था चटर्जी. पार्था चटर्जी का सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी का डिस्टिंक्शन भी इसी तरह से रुडोल्फ का है. रुडोल्फ का डिमांड पॉलिटी, कमांड पॉलिटी. पोल ब्रास बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न मोर इन फियर एंड ट्रेपिडेशन देन इन, है ना, होप एंड एस्पिरेशन, इस तरह से कुछ है. फिर ग्रेनविल ऑस्टिन का बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइक्रोकोज्म इन एक्शन, उसका जो बुक है कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें ये आर्ग्यूज की जो सीमलेस वेब की जो बात करता है कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और जो थ्री टू अदर थिंग्स आर देयर, ये थ्री थिंग्स मेक अ सीमलेस वेब. और ये मतलब जो जो क्लासिफिकेशन है, जो जो मेजर थीम है, किसी भी मेजर आर्ग्यूमेंट है किसी भी थिंकर का, तो उन सब चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है आपको. The idea of rectificatory justice is part of whose theory of justice? Is, as we discussed above, Robert Nozick's entitlement theory of justice. So he also gives three principles of his justice की property should be justly acquired, distribution भी हो तो मतलब कुछ historical कुछ अगर किसी के साथ injustice हुआ है तभी थोड़ा सा कुछ उसमें किया जा सकता है, और it can be transferred. पर वो भी है ना, मतलब. तो तीन principles है, you can look into it. Nozick का rectificatory justice. Question number 47. Which of the following is not an idea of individualism? Henry Sena's man taking care of individuals from life to cradle to grave. इंडिविजुअलिज्म मतलब लिबरल स्टेट की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल लिबरल स्टेट के जो ये आप देख सकते हो कि ये तीनों है, ये शायद कुछ पी में कुछ मिस प्रिंटिंग है. Announcement of contracts lawfully made, laissez-faire. तो taking care of the individual life from cradle to grave, ये वेलफेयर स्टेट का काम है, नैनी स्टेट जिसको बोलते हैं उसका काम है. तो यू कैन इजीली सी कि दिस वुड नॉट बी द आंसर. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं. हाँ, तो उसी तरह से आप, और किस तरह से क्लासिफिकेशंस के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, और जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मेजर स्टेटमेंट्स है, कुछ कैची स्टेटमेंट्स है थिंकर्स के, और उनके द्वारा कोई मूवमेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स है. मिल अंडरस्टूड लिबर्टी प्राइमरली इन नेगेटिव टर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग एडवांस द नोशन ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस इन हिज थियरी? अभी फिर से है ना, जस्टिस पर तीन चार क्वेश्चन आ रखे हैं. तो रोल्स का है ये वेल ऑफ इग्नोरेंस. ये किस तरह से वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रेशनल नेगोशिएटर्स जस्ट सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी शुड बी देयर, और इन ये दे डू नॉट नो अबाउट देयर फिजिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस. ओनली थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का और साइकोलॉजी का इनको ज्ञान होता है. और इसके बाद में रोल्स बोलता है कि ये थ्री प्रिंसिपल्स है ना, ये लोग देंगे. वो तीन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इसको डिफरेंस प्रिंसिपल भी बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द टर्म बैलेंस ऑफ पावर इन फोर डिफरेंट वेज? Is a policy aimed at a certain state of affairs, is an actual state of affairs, is an approximately equal distribution of power, and is any distribution of power.
तो here Morgenthau is the answer. So with this, this paper contains 50 questions. Each question carries 2 marks. तो 100 मार्क्स का पेपर था ये, और मेरिट 65-67 के अराउंड रही थी जनरल की। तो इस हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से आपकी आपकी तैयारी है, और बेटर तरीके से कर सकते हो। मतलब किस तरह से, मतलब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, भले ही वो जस्टिस हो, और उसके बाद में जितने भी थिंकर जस्टिस पर आए, रिपब्लिकन लिबर्टी की बात हो रही है, प्लूरलिज्म ग्रुप थियरी की बात हो रही है, मल्टीकल्चरलिज्म की बात हो रही है, एंड ऑफ हिस्ट्री, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन की बात हो रही है, रेशनल चॉइस थियरी की बात होगी, मतलब किसी अगले पेपर में होगी। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 1950s के बाद में जितने भी चेंजेस आते हैं, सिमिलरली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी 1950s के बाद में जितने भी चेंजेस आते हैं, और आईआर में जो मेजर थियरीज है, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उसमें आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग हमने क्वेश्चन पेपर्स भी डाल रखे हैं, कुछ बुक्स, स्टडी मटेरियल भी डाल रखा है। वहाँ पे कुछ क्विज वगैरह भी करवाते हैं, और हमारे जो नेक्स्ट आने वाले बैचेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको बताते हैं। तो you can join the that telegram channel. The link will be provided in the description. दिस इज इट। आगे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर वीडियोस आते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को उस तरह से ओरिएंट कर सकते हो। विद दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।